Hello everyone. In yesterday's class, we have started the unit number 4, that is properties of matter. We have seen that this chapter is divided into two parts. First is elasticity and second is fluid mechanics. In elasticity, we have seen that it covers the solid state materials and the fluid mechanics covers the gas and liquid materials, that is liquid and gaseous state of matter, and elasticity covers the solid state matter. We have also seen that the solid state matter we also call it as rigid body, and rigid body we divide it into two parts. First is elastic body and second is plastic body. What is meant by elastic body? Elastic body is a body which recovers its original shape and size on removal of external deforming force. We have seen in yesterday's class. And what is meant by plastic body? The body which does not recover its original size and shape on removal of external deforming force is called as plastic body. So far we have seen that this chapter is divided into two parts, that is elasticity and second part is fluid mechanics. Then we have seen that we covers solid state materials in elasticity and we covers liquid and gaseous state material in fluid mechanics. Okay, then we have seen that rigid body, that is solid state material. We divided into two parts, that is first is elastic body and second one was plastic body. We have also seen that elastic body recovers its size and shape after removal of deforming force, and plastic body does not recover its original size or shape on removal of external deforming force. Then we have seen that stress. First part we have seen that stress. What is meant by stress? Stress का हमने definition देखा था. So stress is nothing but the magnitude of internal restoring force per unit area. तो stress के लिए हमने formula लिखा था, stress is equals to force upon area. Okay, short में F by A. Then stress के लिए हमने इसका SI यूनिट भी देखा था. SI यूनिट क्या था stress का? SI यूनिट था हमारा न्यूटन पर meter square, and its CGS unit was dyne per centimeter square. Then we have seen the strain. What is meant by strain? Strain means the change in dimensions of the body. Strain का simple meaning है यहाँ पे change in dimensions of the body. Change in dimensions of body. Then we have seen that strain has divided into three parts. कौन से तीन parts थे? पहला part था आपका linear strain और जिसे एक और नाम था longitudinal strain. लीनियर स्ट्रेन में क्या होता है? फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल. व्हाट इज मीन बाय डेल्टा एल? डेल्टा एल मीन्स द चेंज इन लेंथ and L is the original length. Then strain का हमने सेकेंड पार्ट देखा था. स्ट्रेन का सेकेंड पार्ट था आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और इसको एक नाम दिया गया है बल्क स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता था? हम देखते थे चेंज इन रेशियो और रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, वेयर हम लेते थे यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी. डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम और वी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओरिजिनल वॉल्यूम. देन इसका हमने थर्ड पार्ट देखा था. थर्ड पार्ट था इसका शियर स्ट्रेन.
shear strain, और इसका और एक नाम दिया गया था shearing strain। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होता था, हम एक एंगल की बात करते थे, यहाँ पे होता था आपका एक एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन क्यों होता था, क्योंकि हम एक क्यूब लेते थे, उसमें उसका बॉटम पार्ट फिक्स रखते थे और अपर पार्ट पे फोर्स अप्लाई करते थे। यहाँ पे इसके वजह से क्या होता था, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता था और यहाँ पे हमें एंगल मिलता था फाई। अब शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर स्ट्रेन का भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फाई इज इक्वल्स टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाइट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हम x बोलते थे और हाइट को h बोलते थे। नेक्स्ट हमने देखा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या करता है, हुक्स लॉ हमें रिलेशन देता है किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। हुक्स लॉ ने बेसिकली ये बताया था कि जो आपका स्ट्रेस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। तो फिर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना था वो बना था आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ई, और ये जो ई था इसको हमने नाम दिया था, क्या दिया था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के हमने तीन पार्ट्स देखे थे। पहला था मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड था आपका बल्क मॉड्यूलस एंड थर्ड था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो पहला पार्ट हमने क्या देखा था, पहला पार्ट हमने देखा था यंग्स मॉड्यूलस, इसके तीन पार्ट्स है। पहला यंग्स मॉड्यूलस, दूसरे में हमने देखा था के दैट इज बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा पार्ट था हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको ईटा से डिनोट किया जाता था। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या था, इसका फॉर्मूला हमने देखा था, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव करते हुए लेके आए थे हम, y इज इक्वल्स टू, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला था वो था एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एल, यहाँ पे एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एल क्या था यहाँ पे, कैपिटल एल था आपका ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ था। स्मॉल एल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन लेंथ। आर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने कंसिडर किया था। एम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। एंड g is acceleration due to gravity। ये हमने यंग्स मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। नेक्स्ट हमने देखा था बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस के लिए हमने सिंबल दिया था कैपिटल के। बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस का जो कैपिटल के होता है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और इसके लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो आया था माइनस v डॉट डी पी बाय डी वी। ओके, हमने देखा था कि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा था, क्यों कम हो रहा था, क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज करते थे। तो dp बाई डी क्या होता था, यहाँ पे एक नेगेटिव क्वांटिटी बन जाती थी, बट k नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे v के सामने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया था। देन हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी, इसका एक सब पार्ट हमने देखा था। बल्क मॉड्यूलस में ही हमने एक सब पार्ट देखा था कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना कंप्रेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एक पन्नी में आपने पानी भर दिया और उसको प्रेस करना स्टार्ट किया, वो क्या होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट होगा।
तो उसी को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। उसके लिए सिंबल हमने इंट्रोड्यूस किया था बीटा। बीटा क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, तो 1/k। तो जो बीटा का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो था बीटा इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन कैपिटल V डॉट dp। देन हमने देखा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, थर्ड पार्ट, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में हमने देखा था जो ईटा होता है आपका, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसका सिंबल है ईटा, इट इज नथिंग बट टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, तो इसके लिए हमने फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया था ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए एंड फाई। एफ क्या है यहाँ पे? एफ आपका डिनोट कर रहा है फोर्स, हियर एफ इज फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है? पर यूनिट एरिया में लग रहा है, तो ए है आपका, ए इज एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड फाई है आपका एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। तो कल के क्लास में हमने यहाँ तक डिराइव कर दिया था। आज मैंने रिवीजन इसलिए किया क्योंकि ये सभी चीजें हम जो आज डिराइव करने वाले हैं उसमें काम में आने वाली है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग दीजिए। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, इट इज द पॉइजन्स रेशियो। इट इज द पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन्स रेशियो में हमें ये देखना है कि जब हम कोई भी वायर, अगर फॉर एग्जांपल एक वायर ले रहे हो और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक वायर ले रहा हूं, मान लीजिए एक वायर है, ठीक है। अब इसका रेडियस होगा यहाँ पे, let r be the radius of cross sectional area, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। बट जैसे अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, एक चीज और, लेट द कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। L क्या लिया मैंने? कैपिटल कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। ये दिस इज द ओरिजिनल लेंथ बिफोर अप्लाइंग एनी फोर्स। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, मतलब ये वायर को क्या किया, नीचे के साइड में खींचना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हम क्या करेंगे, नीचे के साइड में इसे खींचेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, नीचे के साइड में एलोंगेट होना स्टार्ट करेगा। ये क्या हो गया, नीचे के साइड में एलोंगेट होना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे बनाया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें क्या हो रहा है, इसका रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेडियस क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे हम इसका लेंथ बढ़ाएंगे, इसका रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो गैप दिख रहा है आपको, जो मैं ग्रीन पेन से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो गैप दिख रहा है, ये कितना चेंज हुआ, ये कौन बताता है? ये हमें बताता है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो का सिंपल फॉर्मूला जो है, इट इज, पॉइजन्स रेशियो को सिंपली डिनोट किया जाता है सिग्मा से। इट इज लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। So basically Poisson's ratio tells us how much a material gets thinner when you stretch it. सिंपल मीनिंग है कि मटेरियल कितना थिन होगा अगर आप उसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पता है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अभी जो मैंने रिवीजन किया था उसमें हमने देखा था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे देखिए, जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ओके, तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, ओरिजिनल लेंथ कितना था L, बट यहाँ पे जो
चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेट इट बी डी एल। ओके, सिमिलरली जो हमने ओरिजिनल रेडियस लिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, वो आर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है वो हम कंसिडर कर रही है। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, चेंज आ रहा है डी आर का, स्मॉल चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड जैसे ही हम फोर्स लगा रहे हैं लेंथ क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हमें पता है डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन का सिंपल मीनिंग है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला हियर, लैटरल स्ट्रेन का सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इट इज चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब डायग्राम में देखिए, पहले हमें लैटरल स्ट्रेन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेंज इन डायमीटर, अभी हमने यहाँ पे डायमीटर ने रेडियस देखा था। ओके, तो डायमीटर इज ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ऑब्वियस है अगर यहाँ पे रेडियस कम हो रहा है तो डायमीटर भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे चेंज इन डायमीटर का मीनिंग हम यहाँ पे देखते हैं, ओरिजिनल डायमीटर देखिए, ओरिजिनल डायमीटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आर कंसिडर किया था रेडियस, तो ओरिजिनल डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस आर। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेंज इन डायमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे डायमीटर कितने से चेंज हो रहा है, वो होगा ट्वाइस डी आर। बेसिकली यहाँ पे 2 and 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो जो हमें चेंज इन डायमीटर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे डी आर बाय आर। ओके, नाउ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है, डीएल से चेंज हो रहा है, और ओरिजिनल लेंथ क्या था हमारा, कैपिटल एल। तो यहाँ पे हमने देखा पॉइजन्स रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन हमने देखा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, सिंपल मीनिंग। एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो हमने कल के क्लास में भी देखा था। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में जैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ओके, जो वायर है उसको नीचे खींच रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसका रेडियस है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे जो डी आर बाय आर जो ये क्वांटिटी है, इट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसके आगे मैं क्या लगा रहा हूँ, नेगेटिव साइन। बट डी एल बाय एल क्या रहेगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये लैटरल स्ट्रेन जो क्वांटिटी आएगी यहाँ पे, इट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें ये सब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सिग्मा क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या था, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो माइनस डी आर बाय आर डिवाइड बाय डी एल बाय कैपिटल। तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चले जाएगा, तो ये बनेगा माइनस डी आर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आएगा एल बाय, यहाँ पे आएगा डी एल। तो जो सिग्मा है दैट इज पॉइजन्स रेशियो, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस एल बाय आर डॉट डी आर बाय डी एल। ये और एक फॉर्मूला ऐड कर लीजिए दैट इज पॉइजन्स रेशियो के लिए। नाउ सपोज इतना लिखने से अच्छा अगर हम ये जो लैटरल स्ट्रेन है इसको कोई क्वांटिटी से डिनोट कर दे और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो लिखा है उसको भी एक क्वांटिटी से डिनोट कर दे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है फॉर्मूला लैटरल स्ट्रेन, लेट लैटरल स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं किससे,
बीटा से। हियर यहाँ पे लिखिए लेट इफ अल्फा एंड बीटा बी द, यहाँ पे अल्फा को हम बोल रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड जो बीटा है उसको हम नाम दे रहे हैं लैटरल स्ट्रेन। ओके, तो अगर अल्फा एंड बीटा आर द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन रिस्पेक्टिवली, तो देन हमारा जो सिग्मा जो फॉर्मूला था पॉइजन्स रेशियो वो बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। सिंपली हमने क्या किया, जो हमारा लैटरल स्ट्रेन था और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन था उसको एक क्वांटिटी से डिनोट कर दिया। फॉर एग्जांपल जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन था उसको हमने अल्फा बोल दिया और जो लैटरल स्ट्रेन था उसको हमने बीटा बोल दिया। तो सिंपली फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया और ये फॉर्मूला हमारे पास और आ गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। तो जो ये पॉइजन्स रेशियो होता है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे पॉइजन्स रेशियो is a dimensionless quantity. डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और इसका जो वैल्यू होता है सिग्मा का वैल्यू किसके बीच में आता है, वो आता है आपका 0.5 एंड -1 के बीच में लाई करता है। अब ये कैसे लाई करेगा वो हम इसका प्रूफ देखेंगे नेक्स्ट इसमें, तब आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख के रखिए सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है किसके बीच में, 0.5 एंड -1 के बीच में। यहाँ तक लिख के रखिए, इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे हेडिंग लिखिए रिलेशन बिटवीन Young's modulus that is denoted by Y, then bulk modulus denoted by capital K and Poisson's ratio जो अभी हमने देखा था that is sigma। तो सबसे पहले आपको आपके नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। वीडियो पॉज कर दीजिए और ये डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इसी डायग्राम को देखते हुए हम इसका डेरिवेशन क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक क्यूब लेना है। क्यूब में जिसके सभी साइड क्या है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के होने चाहिए, यूनिट लेंथ के उसके सभी साइड्स होने चाहिए। सभी साइड्स क्या है यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इसका डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन 8 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 आपका रहेगा, आप अपने नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसको देखते हुए क्या करेंगे, इसके डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो पहले तो आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए कंसीडर अ यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब मतलब जिसका हर एक साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो सकता है। यूनिट क्यूब दैट इज इसका लेंथ जो है, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ देखिए, ए बी इसका लेंथ हो गया, वो हमने कंसीडर किया 1 सेंटीमीटर। इसका विड्थ बी जी जो दिख रहा है उसका विड्थ हो गया, वो भी 1 सेंटीमीटर। और इसका हाइट मतलब ए डी जो आपको दिख रहा है वो इसका हाइट, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर। सभी साइड्स हमने कंसीडर किए। कंसीडर ए यूनिट क्यूब दैट इज हियर वेयर लेंथ, विड्थ एंड हाइट शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स दैट इज हाइट, विड्थ और लेंथ 1 है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम भी आएगा 1। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर निकालने जाएंगे क्यूब का, क्योंकि सभी साइड सेम है, इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम भी आएगा 1। 1 क्यूबिक से अगर हम 1 सेंटीमीटर कंसीडर करें तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या 1 मीटर अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे हमें एक चीज कंसीडर करनी है, ये जो क्यूब बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजीनियस मतलब यहाँ पे सभी जो भी हिस्से आपको दिख रहे हैं, 6 साइड्स जो दिख रहे हैं वो सभी सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस क्यूब इज मेड अप ऑफ
This cube is made of a homogeneous मटेरियल। नाउ अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे। पहले तो आपको ये जो क्यूब है इसके एक्स वाई एंड जेड एक्सिस देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस डिनोट किया गया है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस से हमें इसे डिनोट कर दिया गया। तो फॉर एग्जांपल अब हमें क्या करना है, इसमें हर एक एक्सिस में फोर्स अप्लाई करना है। इस बॉक्स पे क्या करना है, हमें हर एक एक्सिस में हर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, लेट द फोर्सेस बी डिनोटेड बाय टी एक्स। टी एक्स क्यों लिखा, टी एक्स देखो जहाँ पे एक्स एक्सिस है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं इसको हम डिनोट कर रहे हैं टी एक्स से, एंड टी वाई and tz acts along x, y and z directions, x, y and z direction perpendicular to the faces, perpendicular to the faces। faces मतलब यहाँ पे क्यूब है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। पहला फेस कौन सा होगा, देखिए ए बी सी डी, ये आपका हो गया पहला फेस। दूसरा फेस हो गया बी सी एच जी, थर्ड फेस हो गया ए एफ जी बी। ठीक है, तो ऐसे इसमें 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फोर्सेस लगा रहे हैं। कौन से देखिए, टी एक्स एक्स डायरेक्शन में, टी वाई वाई डायरेक्शन में एंड टी जेड जेड डायरेक्शन में। ओके, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इफ अल्फा बी द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, अभी हमने देखा था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेट अल्फा बी द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट फोर्स, पर यूनिट फोर्स। इसका सिंपल मीनिंग है जो भी आपका स्ट्रेन लग रहा है, इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो फोर्स अगर हम लगा रहे टी एक्स, यहाँ पे देखिए फोर्स हम लगा रहे टी एक्स, ये क्या करेगा, क्यूब को स्ट्रेच करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या करेगा, क्यूब को स्ट्रेच करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। कितने अमाउंट से, वो होगा टी एक्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा क्या है आपका, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने देखा था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जो चीज़ों को एलोंगेट जब होती है उसमें उस रेशियो होता है किसका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करें कि टी एक्स जो हमने फोर्स लगाया वो एक्स डायरेक्शन में लगाया। देखिए यहाँ पे टी एक्स फोर्स आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में टी एक्स फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर a force Tx will cause the cube to stretch along the x-axis by amount। कितने अमाउंट से स्ट्रेच होगा वो रहेगा आपका टी एक्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। टी एक्स क्या है, हमारा फोर्स है, और अल्फा है आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे एक चीज और आएगी, लैटरल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन देख लिया, अब लैटरल स्ट्रेन को हमने किससे डिनोट किया था, उसको डिनोट किया था हमने बीटा से। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बीटा देखिए हमने जब बल्क मॉड्यूलस देखा था उसमें कंप्रेसिबिलिटी के लिए भी एक बीटा का ही सिंबल यूज किया था। ओके, और जो लैटरल स्ट्रेन हम देख रहे हैं, लैटरल स्ट्रेन के लिए भी हमने बीटा का ही सिंबल यूज किया है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, भले ही सिंबल सेम है बट दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिख रहे लेट बीटा बी द
lateral strain per unit force। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पॉइजन्स रेशियो में, अगर जहां पे लैटरल स्ट्रेन आया उसका मतलब चीजें कम होना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अभी पॉइजन्स रेशियो में हमने देखा था लैटरल स्ट्रेन जब इंट्रोड्यूस हुआ था, रेडियस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अप्लाई कर रहे थे, तो लेंथ बढ़ रहा था, बट आपका जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा था। तो जहां पे भी आपको लैटरल स्ट्रेन दिखे तो आपको समझ जाना है कि चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे हियर, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको डायग्राम बनानी है, डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है कि डायग्राम में क्या क्या चीजें हो रही है, जैसे फोर्स कहाँ पे लग रहा है, कितने साइज का आपने क्यूब लिया है, एक्सेट्रा, और उसमें बीटा क्या है, अल्फा क्या है, वो आप बता सकते हो, ठीक है। ये जस्ट आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ, हियर नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए हियर द सेम फोर्स, Tx will also cause the cube to contract, cause the cube to contract। अब इसका मीनिंग देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं Tx फोर्स लगा रहा हूँ x डायरेक्शन में, बट एट द सेम टाइम क्या होगा, बस केवल Tx फोर्स इमेजिन कीजिए, केवल Tx फोर्स लगा रहा हूँ x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में तो वो इलोंगेट हो रहा है, बट बाकी के y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है, कंप्रेस होना स्टार्ट हो रही है, वहां पे क्या आएगा, लैटरल स्ट्रेन आएगा। बट जब Tx हम x डायरेक्शन में लगाएंगे वहां पे क्या आएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब वहां पे चीजें क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है, बढ़ते जा रही है, और लैटरल स्ट्रेन मतलब जहां पे चीजें कम हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने x डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली y डायरेक्शन इसका जो रहेगा और z डायरेक्शन रहेगा वो क्या होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे नोट करके लिखा, हियर द सेम फोर्स Tx विल कॉज द क्यूब टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज क्यूब विल गेट थिनर अलोंग, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, y एंड z एक्सिस। अब कितने से कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कितने अमाउंट से, बाय यहाँ पे टी एक्स इंटू यहाँ पे आएगा बीटा। दो चीजें यहाँ पे नोट करके रखिए, यहाँ पे पहला था जब हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं टी एक्स अल्फा, एंड जब हम लैटरल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं जहाँ पे चीजें डिक्रीज हो रही है तो वो होगा कितने से, टी एक्स बीटा, ठीक है। तो स्टेप वन में आपने क्या किया, डायग्राम बना दिया, डायग्राम को आपने एक्सप्लेन कर दिया, टी एक्स टी वाई टी जेड क्या है और किस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आपने अल्फा क्या है वो बताया, अल्फा है आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और कितने से इंक्रीज हो रहा है वो अमाउंट भी आपने लिख दिया। देन आपने बताया बीटा क्या है, बीटा है आपका लैटरल स्ट्रेन, कितने अमाउंट से बाकी डायरेक्शन में क्यूब डिक्रीज हो रहा है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ स्टेप टू, अब लिखेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 नाउ, अब क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ओके, कुछ चीजें बढ़ रही है, कुछ चीजें क्या हो रही है, कम हो रही है। जो ओरिजिनल साइज था हमारा 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी हमने लिया था यूनिट लेंथ, वो सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ चीजें एलोंगेट हो रही है और कुछ चीजें क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो यहाँ पे हमारा न्यू लेंथ बनेगा तीनों साइड का। तो नाउ द लेंथ ऑफ ईच एज, लेंथ ऑफ ईच एज by considering the effect of all three forces, tx ty tz, तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, all three forces, तो कितना होगा यहाँ पे निकालते। देखिए पहला था हमारा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना लिया था हमने, हमने कंसीडर किया था 1 यूनिट, ओरिजिनल लेंथ हमने कंसीडर किया था कितना, 1 यूनिट, ओके। अब स्ट्रेच ड्यू टू टीएक्स फोर्स हम लगा रहे हैं, तो टीएक्स फोर्स जैसे ही लगेगा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा।
सॉरी एलोंगेट होना स्टार्ट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे स्ट्रेच ड्यू टू टी एक्स, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू स्ट्रेच ड्यू टू टी एक्स, कितना आएगा ये वैल्यू रहेगा आपका पॉजिटिव टी एक्स इंटू अल्फा। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, और ये इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जैसे हमने x डायरेक्शन में फोर्स लगाया, देखिए x डायरेक्शन में जैसे फोर्स लगाया, एट द सेम टाइम y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला हो गया स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से क्या बढ़ा, साइज बढ़ा, तो उसके लिए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टी वाई। ओके, तो y एक्सिस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कितना होगा, ये रहेगा आपका माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टी वाई, और यहाँ पे आएगा बीटा। बीटा क्या है आपका, लैटरल स्ट्रेन। जहाँ पे चीजें कम होती है वहां पे बीटा, जहाँ पे चीजें इंक्रीज होती है वहां पे अल्फा। तो बीटा मतलब यहाँ पे आ रहा है आपका लैटरल स्ट्रेन। ओके, सिमिलरली क्योंकि हमने 3 डायरेक्शन कंसिडर किए, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा, z डायरेक्शन में भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू, यहाँ पे हम लिखेंगे टी जेड। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो साइज कम हो रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, तो टी जेड यहाँ पे आएगा बीटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका लैटरल स्ट्रेन, इट इज द लैटरल स्ट्रेन। ओके, तो अब जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं जो ए बी है वो हमारा लेंथ है, तो लेंथ में कितना चेंज मिलेगा हमें, जो ए बी है, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ए बी कितना कम होगा। ओके, तो ए बी में कितना फर्क आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर जो हमारा ए बी रहेगा वो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1। 1 क्यों आया, 1 था आपका ओरिजिनल लेंथ, देखिए ओरिजिनल लेंथ 1 था। अब क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो एलोंगेट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस, बाकी चीजें देखिए यहाँ पे टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा। ये क्या हुआ, ये हमने कंसिडर किया लेंथ। लेंथ में कितना चेंज आएगा वो यहाँ पे डिनोट कर दिया, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बीजी मतलब यहाँ पे हाइट, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर भी फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा बीजी। अब बीजी कितना आ सकता है, यहाँ पे देखिए बीजी मतलब कौन सा डायरेक्शन, सो यहाँ पे बीजी मतलब कौन सा डायरेक्शन, देखिए y एक्सिस वाला डायरेक्शन। ये देखिए y एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी y एक्सिस होगा। एक मिनट, इसे कलर पेन से बनाते हैं, ये देखिए अलोंग द y डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टर्म जो आएगा वो आपका आएगा bg इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज रहेगा। 1 एलोंगेट किस में हो रहा है, ये एलोंगेट हो रहा है आपका y डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पहला टर्म जो आएगा वो आएगा प्लस टी वाई अल्फा। अल्फा क्यों लिखा हमने, क्योंकि उस साइड में क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, तो जिस साइड में अल्फा आता है दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, उस साइड में हम अल्फा साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी साइड क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो टी एक्स बीटा माइनस यहाँ पे आएगा टी जेड बीटा। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपका विड्थ, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर। अब हाइट देखिए, हाइट हम कंसिडर कर रही है बीसी पार्ट, हाइट आपका ये बी एंड ये सी वाला पार्ट, इसके अलोंग, ये किसके अलोंग है, ये देखिए जेड डायरेक्शन के अलोंग ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर देखिए जेड डायरेक्शन दिख रहा है, सेम नीचे साइड में भी आपको जेड डायरेक्शन दिखेगा, ये नीचे जेड एक्सिस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जेड एक्सिस के अलोंग देखना है, तो बी सी कौन सा लेंथ था यहाँ पे, बी सी। पहले हमने कौन सा लिया, ए बी, जो क्या डिनोट कर रहा है लेंथ, फिर हमने दिया बी जी जो डिनोट कर रहा है विड्थ। अब हमने देखना है हाइट, दैट इज बी सी। तो बी सी क्या होगा यहाँ पे,
बी सी विल बी इक्वल्स टू 1। ओरिजिनल जो हमारा लेंथ था 1 प्लस इसके अलोंग कहाँ पे एलोंगेट हो रहा है, ये एलोंगेट हो रहा है जेड डायरेक्शन में। तो एलोंगेशन किसके अलोंग हो रहा है, टी जेड। तो फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, टी जेड। और यहाँ पे आएगा अल्फा, क्योंकि जहाँ पे एलोंगेशन होता है वहाँ पे अल्फा मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ, माइनस बाकी चीजें एज इट इज, टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा। ओके, तो हर इसमें देखिए एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे टी एक्स एलोंगेट हो रहा है, वाई एक्सिस के लिए टी वाई एंड जेड एक्सिस के लिए बी सी। तो ये हो गया आपका हाइट। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ना अब क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट, इसमें देखिए वॉल्यूम कैसे निकाला था हमने, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो सबका साइज एक ही था, लेंथ भी 1 था, विड्थ भी 1 था, हाइट भी 1 था। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 1। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए सबके साइजेस क्या हो रहे हैं, अलग अलग चेंज हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे नया वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नाउ द न्यू वॉल्यूम product of is the product of new edges, new edge lengths। तो यहाँ पे जो नया वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ वी, और यहाँ पे न्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, कौन से लेंथ हो गए, ए बी इंटू बी जी इंटू बी सी, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ए बी का जो वैल्यू आया था वो लिखेंगे यहाँ पे, क्या आया था वैल्यू, 1 प्लस टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा। बी जी का वैल्यू क्या था, 1 प्लस टी वाई अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी जेड बीटा। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, बी सी का वैल्यू कितना आया था, 1 प्लस टी जेड अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा। ओके, अब आपको लगेगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो ये काफ़ी बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करना है। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करना है, अब यहाँ पे देखिए जो अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ और बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैटरल स्ट्रेंथ। बट ये जो वैल्यूज है अल्फा एंड बीटा की, ये जो वैल्यूज है अल्फा एंड बीटा की, ये काफ़ी स्मॉल होती है, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, इसमें एलोंगेट तो हो रहा है बट काफ़ी स्मॉल अमाउंट से एलोंगेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। स्टेप 3 लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप 3, और एक नोट करके आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट। ये एग्जाम में नहीं लिखना है नोट आपको, बस आपके समझने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। सिंस अल्फा एंड बीटा represents very small strengths, any terms that involve their products, like alpha into alpha, that is alpha square, beta into beta is beta square, or alpha into beta will be extremely small, will be extremely small, and we can neglect these values and can be neglected. ओके, अब स्टेप 3 में हम एक अल्जेब्रिक अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं। हियर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे स्टेप 3 में, हियर यूजिंग अल्जेब्रिक अप्रोक्सीमेशन, और ये इंपॉर्टेंट है,
इसको देखो कौन सा अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर रहे हैं, 1 प्लस ए 1 प्लस बी multiplied by 1 plus c. It will approximately equals to 1 plus a plus b plus c. Okay, so give this equation number 4 and let this be equation number 5. अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें देखिए आपको काफी हद तक सिमिलरिटीज दिख रही होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है पहला टर्म। अब जो ए वाला टर्म है, ए वाला टर्म को हम बोल सकते हैं टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा। सिमिलरली जो बी वाला टर्म है, इसमें हम बोल सकते हैं जो बी टर्म है वो पूरा हो जाएगा टी वाई अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी जेड बीटा। सिमिलरली जो सी वाला टर्म है वो भी हो जाएगा आपका टी जेड अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा। 1 वाला टर्म एज इट इज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 5 इन इक्वेशन 4, यूजिंग 5 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। ओके, तो ये जो न्यू वॉल्यूम है, यहाँ पे जो वी न्यू लिखा है मैंने, इसको लिखेंगे वी न्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस ए वाला टर्म क्या है, अभी जो मैंने बताया ए वाला टर्म है इसमें टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा प्लस, देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था 1 प्लस ए वन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो 1 लिख दिया मैंने एज इट इज। अब ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, क्या था ए का वैल्यू टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा। नेक्स्ट बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे है टी वाई अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी जेड बीटा। सिमिलरली हमारे पास सी का भी वैल्यू है, सी का वैल्यू क्या है टी जेड अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा। तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, टी जेड अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, जो अल्फा वाले टर्म्स है एंड जो बीटा वाले टर्म्स है उसको हम साथ में लेके आ सकते हैं। तो देयरफॉर वी न्यू जो नया वॉल्यूम बना वो क्या बनेगा 1 प्लस, अब यहाँ पे अल्फा वाले टर्म सभी साथ में लेके आते हैं, तो टी एक्स अल्फा प्लस टी वाई अल्फा। देखिए अल्फा वाले जो भी टर्म्स है वो सभी पॉजिटिव है एंड बीटा वाले जो भी टर्म्स है वो यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेटरल स्ट्रेन मतलब डिक्रीज, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब इंक्रीज। तो यहाँ पे टी वाई अल्फा प्लस टी जेड अल्फा, अल्फा वाले टर्म्स हमने लिख दिए। अब बीच में यहाँ पे देखिए सभी में माइनस साइन है, बीटा के पहले सभी में माइनस साइन है, तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ और बीटा वाले टर्म्स लिखता हूँ। तो टी वाई बीटा अंदर क्या आएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस टी जेड बीटा प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा टी एक्स बीटा प्लस टी जेड बीटा प्लस टी एक्स बीटा प्लस टी वाई बीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, सिंपली मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और अंदर क्या आएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि बीटा के सभी टर्म्स में माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 1 प्लस पहला ब्रैकेट एज इट इज टी एक्स अल्फा प्लस टी वाई अल्फा प्लस टी जेड अल्फा। और यहाँ पे नोट कीजिए टी और जो x लिखा है मैंने, x वो t के बॉटम में लिखा है, t के साथ नहीं लिखा है। ओके, तो आपको x y z जो भी सिंबल शो करना है वो बॉटम में शो करना है, उसके साथ में नहीं। साथ में क्या शो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में अल्फा या अल्फा बीटा वो मल्टीप्लिकेशन में, और जो x दिख रहा है वो t के बॉटम में। ओके, यहाँ पे माइनस, अब देखिए यहाँ पे टी वाई बीटा और यहाँ पे टी वाई बीटा भी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 टी वाई बीटा, सिमिलरली 2 टी जेड बीटा प्लस 2 टी एक्स बीटा। हमने क्या किया, टर्म्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट में देखिए अल्फा वाला टर्म कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में
2 और बीटा वाला टर्म कॉमन है, तो उसे हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस अल्फा कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। यहाँ पे माइनस और 2 बीटा कॉमन है, माइनस साइन एज इट इज था, माइनस 2 बीटा हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे आएगा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। नाउ अब हमें यहाँ पे करना है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मतलब देखिए, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये लिखना नहीं है, ये जस्ट रफ में आपको बता रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, रफ पार्ट। देखिए फैक्टरिंग कैसे करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे एक इक्वेशन दिया रहता था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 होता था। फिर 6 के हम फैक्टर्स निकालते थे, कितना, 2 इंटू 3 होता था। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखते थे, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालते थे, x प्लस 2 प्लस यहाँ पे x प्लस, ओके, इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो x प्लस 2 है इसको अलग से लिखते थे x प्लस 2, और जो ए x और ए 3 है इसको अलग ब्रैकेट में लिखते थे, ठीक है, ऐसे लिखते थे। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, देखिए अल्फा और यहाँ पे -2 बीटा अलग दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे x था और 3 था, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है दैट इज x प्लस 2, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, ठीक है, समझने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फैक्टरिंग मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो x -2 बीटा को हम साथ में लिखते हैं एक ब्रैकेट में, और जो बाकी ब्रैकेट्स है कॉमन है, क्योंकि कॉमन ब्रैकेट है, देखिए टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड यहाँ पे भी है, और टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड नेक्स्ट इसमें भी है। तो हम दोनों को क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो रफ पार्ट है ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देयरफॉर ये जो वी न्यू है दैट इज न्यू वॉल्यूम, क्या बनेगा न्यू वॉल्यूम आपका, न्यू वॉल्यूम आपका बनेगा 1 एज इट इज आएगा, ठीक है, प्लस 1 के बाद प्लस वाला साइन है। पहला फैक्टर कौन सा था, अल्फा -2 बीटा, और सेकंड फैक्टर कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन का ही साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने रफ में किया है x प्लस 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन है x प्लस 3, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, ओके। तो इक्वेशन नंबर 5 था, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब लिखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, अब हम यहाँ पे एक चीज कंसिडर कर रहे हैं कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर मतलब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया हमने कल देखा था वो होता है स्ट्रेस। तो यहाँ पे लिखते हैं हियर अप्लाइंग यूनिफॉर्म प्रेशर, मतलब जो हमारा डायग्राम था हर डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते थे, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते थे, तो हर डायरेक्शन में हम इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर अप्लाइंग यूनिफॉर्म प्रेशर, वी कंसिडर स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, दैट इज प्रेशर क्या होता था, प्रेशर होता था हमारा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ओके। तो जो ये प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज नथिंग बट द फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, टी एक्स टी वाई टी जेड हर डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे डायग्राम में हमने डिनोट कर दिया था और लिखा भी था, लेट द फोर्सेस टी एक्स टी वाई टी जेड, फोर्सेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। ऑब्वियसली क्यूब लिया हमने, हर एक एरिया में फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर वाला जो टर्म हमने कंसिडर किया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो हियर हम लिख सकते हैं हियर कंसिडर, क्योंकि प्रेशर सभी साइड में सेम लग रहा है, हर एक साइड में जो 6 साइड है क्यूब के हर एक साइड में प्रेशर सेम लग रहा है। तो हियर कंसिडर जो टी एक्स फोर्स हम लगा रहे हैं, टी वाई फोर्स हम लगा रहे हैं,
टी जेड फोर्स हम लगा रहे हैं वो सभी इक्वल है और वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, पी के। पी क्या है आपका, प्रेशर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 6, सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 वी गेट, क्या बनेगा इक्वेशन 6, देयरफॉर इक्वेशन 6 देखिए क्या है, 1 प्लस पहला ब्रैकेट है अल्फा माइनस 2 बीटा और सेकेंड ब्रैकेट टी एक्स टी वाई टी जेड, जिनका वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर। तो देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस 2 बीटा एज इट इज। अब टी एक्स का वैल्यू भी हमने पी लिया है, टी वाई का वैल्यू भी पी लिया और टी जेड का वैल्यू भी ही कंसिडर किया है हमने। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 प्लस पहला ब्रैकेट एज इट इज अल्फा माइनस 2 बीटा और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा इसका 3p, p प्लस पी प्लस पी इज इक्वल टू 3p। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो न्यू वॉल्यूम हमारा बनेगा v न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 3p पहले लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 2 बीटा। ये हो गया आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने क्या कंसिडर किया, जो फोर्सेस हम लगा रहे हैं हर एक साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब लिखेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, अब स्टेप नंबर 5 में क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 5 में हमें बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है। ओके, हमें यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में निकालना है, रिलेशन हमें निकालना है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और सिग्मा। सिग्मा क्या है आपका, पॉइजन्स रेशियो। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे बल्क मॉडुलस। टू कैलकुलेट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टू कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस को किससे डिनोट किया गया था, हमने कैपिटल के से डिनोट किया था। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस का हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या डिनोट किया था, हमने डिनोट किया था K इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ये हमने बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखा था। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया F बाय ए, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एंड F बाय ए इज नथिंग बट P। ओके, तो ये सब हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन का हमने फॉर्मूला लिखा था, आज भी रिवाइज किया हमने। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब जो न्यू वॉल्यूम बना वो क्या बना, और ओरिजिनल वॉल्यूम तो हमने 1 कंसीडर किया था, तो हमारा न्यू वॉल्यूम कितना था, वी न्यू लिखा है वहां पे, देखिए चेंज इन वॉल्यूम कितना था, ये होगा आपका वी न्यू माइनस वी ओरिजिनल और ओरिजिनल वॉल्यूम, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी ओरिजिनल से। ओके, तो हमारा न्यू वॉल्यूम कितना आया, न्यू वॉल्यूम था हमारा, चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, मतलब न्यू में से हमें ओरिजिनल माइनस करना पड़ेगा डिवाइड बाय वी ओरिजिनल। ये फॉर्मूला हमने कल भी देखा था। तो ये था 1 प्लस 3p अल्फा माइनस 2 बीटा, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था हमारा, 1 था। ठीक है, तो बड़े में से छोटा हम माइनस कर रहे, नए में से पूरा नाम माइनस कर रहे, एंड वी ओरिजिनल कितना था हमारा, ये भी 1 ही था। तो हमारा आंसर कितना आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन का, तो वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 एंड 1 गेट्स कैंसिल आउट, ये 1 और ये नेगेटिव, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 3p अल्फा माइनस 2 बीटा, 3p अल्फा माइनस 2 बीटा।
ये क्या निकाला हमने, ये निकाला है हमने वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, अभी पूरा नहीं हुआ है, बल्क मॉड्यूलस हमने कैलकुलेट नहीं किया पूरा, अभी केवल हमने जो वॉल्यूम स्ट्रेन वाला पार्ट था, वॉल्यूम स्ट्रेन वाला पार्ट वो ही कैलकुलेट किया। स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किया। तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम स्ट्रेन हमने निकाल लिया कितना, 3p अल्फा माइनस 2 बीटा, नीचे 1 है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ स्ट्रेस कितना आएगा यहाँ पे, नाउ अब लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा कितना, F बाय ए, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर। ओके, तो ये पुट करेंगे किसमें, हमारा जो इक्वेशन था उसमें, K इज इक्वल्स टू, तो K बल्क मॉड्यूलस क्या बनेगा, ऊपर हम लिखेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना निकाला हमने, कैपिटल P, और वॉल्यूम स्ट्रेन कितना निकाला, वो निकाला है 3p अल्फा माइनस 2 बीटा। यहाँ से P एंड P गेट्स कैंसिल आउट, ये P और ये वाला P गेट्स कैंसिल आउट, तो देयरफॉर हमारा बल्क मॉड्यूलस कितना आया, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस इट इज इक्वल्स टू, ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1, नीचे की क्या कौन सी क्वांटिटी बची, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 7, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 7। नाउ स्टेप 5 हो गया, स्टेप 5 में हमने क्या किया, बल्क मॉड्यूलस निकाला। अब स्टेप 6 में हमें क्या निकालना है, स्टेप 6 में हमें निकालना है यंग्स मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो देखना है। तो स्टेप 6 लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप 6। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी है, और अल्फा और बीटा किससे रिलेटेड है, ये हमने देखा था पॉइजन्स रेशियो में, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा होता है। मतलब हम जो हमारा ओरिजिनल डेरिवेशन है उसके करीब जा रहे हैं, उसको डिराइव करने के करीब जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेप 6 में हमें क्या करना है, फाइंडिंग यंग्स मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है आपका फॉर्मूला, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस longitudinal stress upon longitudinal strain, longitudinal strain। ओके, तो ये हमने देखा था फॉर्मूला किसका, यंग्स मॉड्यूलस का, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। लेट इमेजिन ओनली Tx फोर्स इज अप्लाइड। ओके, यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर ओनली Tx फोर्स इज अप्लाइड, कंसीडर करें कि Tx फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, इज अप्लाइड। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल आए या टेंजेंशियल स्ट्रेस आए। कल भी हमने देखा था स्ट्रेस अगर आपको दिखा तो उसका सिंपल मीनिंग है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स मतलब हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, Tx लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कौन सा लगा रहे हैं हम, Tx लगा रहे हैं, तो Tx अपॉन ए। ओके, तो Tx और जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट लेंथ कंसीडर किए थे हमने स्टार्टिंग में, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा Tx। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, नाउ longitudinal strain, it will be equals to Tx अल्फा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन Tx अल्फा क्यों लिया, ये कहाँ से आया, ये हमने दिया था स्टेप नंबर 1 में।
देखिए स्टेप नंबर वन क्या था हमारा, सॉरी स्टेप नंबर टू, यहाँ पे देखिए हमने लिखा था स्ट्रेच ड्यू टू टी एक्स। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू कितना आया था, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू आया था टी एक्स अल्फा। ठीक है, तो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रिपीट करके लिखा हुआ है, सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रिपीट करके लिखा है। और ए का वैल्यू 1 क्यों आया, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया। यूनिट का मतलब होता है यहाँ पे 1। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू पर यूनिट एरिया, तो इसलिए ए का वैल्यू 1 आया। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया, टी एक्स अल्फा। ये कहाँ से आया, ये आया आपका जो हमने स्टेप नंबर सेकेंड लिखा था उसमें। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या था, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस तो हमने निकाल लिया Tx, तो देयरफॉर पुट करेंगे वैल्यू, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू Tx, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना निकाला हमने, ये निकाला Tx मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो यहाँ से Tx एंड Tx गेट्स कैंसल आउट, कौन सा टर्म बचेगा, वो बचेगा 1/अल्फा। और यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 1/y। अल्फा उस साइड चला जाएगा और y नीचे के साइड आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1/y। तो यहाँ पे हमने देखिए अल्फा और y के बीच में रिलेशन निकाल लिया। सिमिलरली नाउ अब हमें पता है पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो हमने निकाला था। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, पॉइजन्स रेशो सिग्मा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 7 है, ये सब वैल्यूज हमें क्या करने, इक्वेशन 7 में पुट करने। देखिए अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया एंड बीटा का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। बट यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 2 बीटा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं एक बार। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 वी गेट, क्या था इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 था k इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स अल्फा माइनस 2 बीटा। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है उसके साथ -2 बीटा भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक खेल सकते हैं। कौन सी ट्रिक, यहाँ पे देखिए k इज इक्वल्स टू 1/, क्या होगा अगर मैंने यहाँ से ब्रैकेट में से अल्फा कॉमन निकाल लिया। अब आप बोलोगे बट अल्फा तो एक ही साइड में है, 2 बीटा के साथ अल्फा है ही नहीं। तो देखिए हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 3 तो एज इट इज लिखेंगे। अल्फा को अगर मैंने बाहर निकाल लिया, अल्फा बाहर निकला, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2 बीटा एज इट इज, और इसके नीचे अल्फा से डिवाइड कर देंगे। अब होगा क्या है, यहाँ पे देखिए अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा आएगा यहाँ पे, और -2 बीटा इंटू अल्फा बाय अल्फा, तो अल्फा बाय अल्फा गेट्स कैंसल आउट हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा को कॉमन निकाल लिया, उसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 1 बचा, -2 बीटा, और इसके नीचे अल्फा आ गया। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। नाउ अब देखिए, अब क्योंकि अल्फा मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/अल्फा का वैल्यू कितना हो सकता है, y, और सॉरी 1/अल्फा का वैल्यू y होता है। तो देयरफॉर नाउ हियर, नाउ इन इक्वेशन 8 1/अल्फा इज इक्वल्स टू y एंड बीटा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू सिग्मा पुट कर देंगे। क्या बनेगा इक्वेशन, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 1/अल्फा का वैल्यू कितना होता है, y, तो y एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे। ऊपर क्या आएगा y, क्योंकि 1/अल्फा का वैल्यू y है। ओके, तो y ऊपर ही आएगा क्योंकि ये 1 और अल्फा नीचे है। तो यहाँ पे भी देखिए 1 ऊपर है और अल्फा नीचे है, तो 1/अल्फा इज इक्वल्स टू y। नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अल्फा चला गया, 1/अल्फा के साथ वैल्यू y आ गया था। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस अब 2 बीटा बाय अल्फा का वैल्यू देखिए पॉइजन्स रेशियो से हमने देखा था, ये होता है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू, एक मिनट, 6 नहीं है ये है आपका सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे बीटा बाय अल्फा का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया हमने सिग्मा। नाउ
नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है नीचे, 1y/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 सिग्मा, ये जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो टर्म बन जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू क्या, यहाँ पे k ऑलरेडी प्रेजेंट है, इक्वल्स टू y। अगर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 3k 1 माइनस 2 और ये सिग्मा 6 नहीं है ये, दिस इज सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ y क्या है आपका, y है आपका यंग्स मॉड्यूलस, k क्या है आपका, k है आपका बल्क मॉड्यूलस, और सिग्मा है आपका पॉइसन्स रेशियो। नोट कीजिए सिग्मा, इट इज अ सिग्मा नॉट 6। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइसन्स रेशियो। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या किया, रिलेशन डिराइव किया किसके बीच में, y k एंड सिग्मा। y क्या है आपका यंग्स मॉड्यूलस, k है आपका बल्क मॉड्यूलस एंड सिग्मा इज द पॉइसन्स रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे इक्वेशन रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन्स रेशियो। उसके बाद हम इक्वेशन डिराइव करेंगे किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड ईटा। ईटा क्या होता था आपका, ईटा होता था आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो ये इक्वेशन 8 मार्क्स में आ सकता है। ओके, तो इसके बाद जो भी क्लासेस रहेंगे वो भी आपको कंटिन्यू करना है और इसका रिवीजन करते चलना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।